Good afternoon, one and all. Today is 8th October 2021 and we'll be taking directory structure, Linux directory structure. This is the Linux directory structure where the directory begins with the root directory. ये root directory से शुरू होता है और इस root directory के अंदर ये सब directories present है. These are the directories which are present under the root directory. So we'll be talking about individual directory one by one. So let's begin with the first directory. Let's begin with the first directory, that is root directory. Root directory, every single file and directory starts from the root directory. Only the root user has right privileges under this directory. Please note that /root is the root home directory. This is user's home directory, root home directory, which is not same as this root directory. इस जो बैकस्लैश है इसको भी हम root directory बोलते हैं. और अगर हम यूजर से जो लॉगिन करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि दैट व्हेन यू लॉग इन एज अ यूजर, as a root user, so that root is called as an administrator. जो root है उसको administrator बोलते हैं. अगर हमने उससे लॉगिन किया तो हमारे पास में administrative privileges रहती है. And the home directory for this root is /root, ROOT, and this backslash is also called as a root directory. So this is a single location, single directory structure from where other directory structure begins. तो हमारा जो ये root directory है, जो हम बात करते हैं कि कहाँ से हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, दिस इज हमारा root directory. Under this root directory, these are the directories which are present. So this is a single file and a directory that start from the root directory. So every single file or any other directory that always begins with this root directory. Okay, and the home directory for the root directory is /root, ROOT. Let's begin with the first directory under the root directory, that is called as the bin. Bin is used for user binaries. User binaries have bin directory. This contains all binary executables. सारी binary executable files जो होती हैं ये bin directory में present है. Bin is a system directory. इस directory के अंदर सारी user binaries present है and that contains all the executable files. So common Linux command that use a single user modes are located under this directory, and the commands like ps, ls, ping, grep, cp, these are the commands which are useful in Linux operating system to see the contents of the directory. That prompt string, then ping is used to see the connectivity, grep globally search for a regular expression, copy command. These are the commands which are already available under the bin directory. So this bin directory is a system directory which contains the कमांड्स एग्जीक्यूटेबल्स, कमांड की एग्जीक्यूटेबल्स प्रेजेंट रहती है बिन डायरेक्टरी के अंदर. और इन डायरेक्टरीज, इस डायरेक्टरी को यूज करके हम ये कमांड्स को यूज कर सकते हैं. सो दीज डायरेक्टरीज बिन डायरेक्टरी कंटेन द कमांड्स. इनका एग्जीक्यूटेबल कमांड्स का फाइल प्रेजेंट रहता है. तो हमने अगर कमांड यूज की तो वो कमांड क्या करेगा, बिन डायरेक्टरी के अंदर सर्च करेगा कि इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है. तो ये सिस्टम डायरेक्टरी है. So this directory contains all the binaries. Similarly, sbin, that is system binaries. जैसे हमारे पास में ये यूजर बाइनरीज थी जिसमें यूजर से रिलेटेड सारी कमांड्स प्रेजेंट थी, इसी टाइप से हमारे पास में सिस्टम बाइनरीज है. System binaries is just as /bin. Sbin also contains the user that directory commands, but the commands which are available under sbin are the commands which are related to the administrator. एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इन कमांड्स को यूज करता है. मतलब अगर हमने रूट यूजर से लॉगिन किया तो रूट जो है उसके पास में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस रहते हैं. उन कमांड्स का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो sbin डायरेक्टरी में प्रेजेंट है. एक बिन डायरेक्टरी है, एक sbin डायरेक्टरी है. बिन डायरेक्टरी इज यूजर बाइनरीज, मतलब जो यूजर कमांड यूज करता है, जो नॉर्मल यूजर्स जो वर्क करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, डायरेक्टरी कंटेंट्स को देखना है, प्रॉम्प्ट चेंज करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, उसके लिए वो यूजर बाइनरीज करके डायरेक्टरी है बिन डायरेक्टरी, उसके अंदर कंटेंट्स अवेलेबल है. दूसरी डायरेक्टरी है हमारी sbin. sbin इज सिस्टम बाइनरी. सिस्टम बाइनरीज में सिस्टम रिलेटेड कमांड्स अवेलेबल है. ip tables, reboot, fdisk, ifconfig, swap on, these are the commands which are available under the sbin directories. sbin directory के अंदर ये सारी commands available है. Next, the fourth directory is etc. etc contains the configuration files. etc जो directory है वो configuration files contain करती है. So these are the files which are required for the programs. ये files किसने यूज करते हैं, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए. So contain startup and shutdown shell scripts used to start and stop the individual programs. कोई भी individual programs है, कोई भी
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो फाइल्स लगती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो प्रेजेंट रहती है ईटीसी डायरेक्टरी में. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टरी, उसको क्या कंटेन करता है. ईटीसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती है एसबीन में सिस्टम मेमोरी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है. दिस हैज बीन आस्क्ड इन एमसीक्यूज. सो फॉर एग्जांपल /etc डायरेक्टरी के अंदर resolve.conf फाइल है. ओके, ईटीसी के अंदर log rotate.conf फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. लॉग जो है लॉग लिखा था. लॉग मींस इट रिकॉर्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूजर. यूजर ने जो जो काम किया है उसकी लॉग पूरा पूरा लिखा रहता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में. एक resolve.conf फाइल है ईटीसी डायरेक्टरी में. सो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स आर प्रेजेंट अंडर द ईटीसी डायरेक्टरी. ईटीसी डायरेक्टरी आल्सो कंटेन्स स्टार्टअप एंड शटडाउन शेल स्क्रिप्ट्स. मतलब जब हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते हैं तो कई सारी सर्विसेज और कई सारे जो सर्विसेज हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, सिस्टम फाइल्स है, वो शुरू होती हैं, शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट होते हैं, इनिशियलाइज होता है. तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है स्टार्टअप और शटडाउन करने के लिए वो भी ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है. The fifth directory is div directory. That div stands for device files. So it contains the device files. Device files basically जो हमारे पास में external storage devices रहते हैं like USB. हमें अगर USB पोर्ट के ऊपर कुछ पेन ड्राइव कनेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड का की कनेक्ट करना है, कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज या एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस, पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, हमारे पास में कीबोर्ड कनेक्ट करना है, माउस, प्रिंटर, तो उस USB जो डिवाइस है वो USB डिवाइस इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास में डी ड्राइव, ई ड्राइव, जैसे हमारे पास में विंडोज के अंदर कैसा रहता है, सी ड्राइव के अंदर सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डी ड्राइव के अंदर हम DEF ऐसे ड्राइव बनाते हैं, तो ये पार्टीशन रहता है हार्ड डिस्क का, इसके अंदर हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो जो लास्ट अल्फाबेट रहता है वो हमारा USB के लिए रहता है. जैसे अगर हमने पेन ड्राइव लगाई तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट अल्फाबेट ले लेता है और उसके अंदर पेन ड्राइव के कंटेंट्स दिखाई देते हैं. यहाँ इस टाइप का अल्फाबेट स्पेसिफिकेशन नहीं होता लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे कंटेंट्स जो है वो डायरेक्टरी के अंदर दिखाई देते हैं. तो /div के अंदर आपको देखोगे तो आपको पेन ड्राइव के कंटेंट्स दिखाई देंगे. ये जैसे /div/USB home 0 TTY टर्मिनल टाइप 1, तो ये डायरेक्टरीज हैं स्पेसिफिकली जहां पर हम पेन ड्राइव के कंटेंट्स, फ्लॉपी डिस्क के कंटेंट्स, CD ROM के कंटेंट्स हम देख सकते हैं. सो दिस div directory that is for the device files location. Process information, it contains the information about the system processes. जो proc directory है, proc directory contains the information related to the proc directory contains the information related to the processes. जो processes है उससे related सारी information जो है वो proc directory के अंदर available है. This is a pseudo file system contains the information about the running process. देखो process क्या होता है, what do you mean by a process? Any program which is running is called as a process. So that proc directory contains the process information. मतलब जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर अवेलेबल है, proc डायरेक्टरी के अंदर. तो /proc PID, this PID is process identification number. So you can see what are the different processes which are running under this proc directory. तो proc directory के अंदर हमको सब नंबर दिखाई देंगे कि कितनी प्रोसेसेस रन हो रही है. प्रोसेसेस मतलब what are the programs which are running in the operating system. जैसे अगर हमने वर्ड खोला, वर्ड ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, पावरपॉइंट ओपन किया, तो ये प्रोसेसेस हो गई. ये सारे प्रोग्राम्स जो रन हो रहे हैं, एनी रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस. और जो भी प्रोसेस रन हो रहा होता है उसको एक PID, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है. तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी प्रोसेसेस रन हो रही है. नेक्स्ट टाइम विल बिगिन विद द प्रैक्टिकल आल्सो, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी. This is a virtual system with text information about the system resources /proc/uptime. So ये इसके अंदर एक वर्चुअल सिस्टम है जिसमें आपको टाइम सिस्टम के बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में भी पता चलता है. that is available under the uptime file under the proc directory. Seventh directory is var directory. Var stands for the variable files. Var stands for the variable file which contains the files that are expected to grow and can be found under this directory. This includes the system log files /var/log, packages and database
files/var/lib, emails/var mail, var cool मतलब अगर हमने print कमांड दी है तो print q जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये वेरिएबल फाइल्स है। वेरिएबल फाइल्स क्यों बोला है? बिकॉज द साइज ऑफ दिस फाइल्स कैन ग्रो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। यूजर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता है, ये सिस्टम लॉग फाइल है। इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉग की कब कौन से यूजर ने लॉगिन किया, क्या एक्सेस किया, पैकेज और डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लिब डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। कोई मेल्स रिसीव हुए हैं मेल डायरेक्टरी के अंदर, किसी ने प्रिंट कमांड दी है तो स्कूल डायरेक्टरी के अंदर, लॉग फाइल्स लॉग डायरेक्टरी, टेम्पररी फाइल्स नीडेड अक्रॉस reboots/var/temp डायरेक्टरी। तो ये सब जो डायरेक्टरीज अवेलेबल है, जो ये डेटाबेसेस अवेलेबल है, ये सब var डायरेक्टरी जो है वो वेरिएबल फाइल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। 8 इज temp डायरेक्टरी, टेम्पररी फाइल्स। टेम्पररी फाइल्स हमें पता है दैट इज अवेलेबल इन द लाइक कुकीज है। कुकीज टेम्पररी फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। तो जब हम कुछ लॉगिन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनलोड होती है, डाउनलोड जो होता है वो भी टेम्पररी रहता है। तो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेम्पररी अवेलेबल रहती है बाय द सिस्टम और बाय द यूजर इज स्टोर्ड अंडर द डायरेक्टरी। फाइल्स अंडर दिस डायरेक्टरी आर डिलीटेड व्हेन द सिस्टम इज रीबूटेड। जब सिस्टम रीबूट होता है, सिस्टम शटडाउन होता है और नया सिस्टम स्टार्ट होता है, तो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाता है। The next directory is /user, user programs that contains binaries, libraries, documentation, source code for the second level programs. So /user/bin contains the binary files for the user programs. If this directory is not found, then look under the /user/bin directory. So that directory contains @ awk, ccc, less, scp. These are the commands which are available under the bin directory. तो हमारे पास में /bin directory भी है अलग से, and /usr/bin directory भी है. That also contains some of the binary files for the user programs. Similarly, /user/sbin contains the binary files for the system administrator. If this directory is not found, then you can look under the /user/sbin with these commands. ये commands जो होती है ये इसके अंदर आ जाएंगी। मतलब जो bin directory है that is basically contains the binary executables. binary executable मतलब कि जो हमारी शेल स्क्रिप्ट्स रहती है, कमांड्स रहती है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एस बिन में सिस्टम रिलेटेड कमांड रहेंगी और बिन में यूजर रिलेटेड कमांड रहेंगी, चाहे वो /user/usr/bin डायरेक्टरी होगी या फिर bin डायरेक्टरी होगी। सिमिलरली /usr/bin lib डायरेक्टरी कंटेन्स द लाइब्रेरी फाइल्स फॉर /usr, bin एंड sbin. sbin और bin की जो लाइब्रेरी फाइल्स है वो lib के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। Local contains user programs that is installed from the source. When you install Apache source, Apache web server है, अगर आप Apache web server इंस्टॉल करते हैं, मतलब Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को Apache web server बनाया, तो हमारा /user/local उसके अंदर Apache की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। Okay. Then we have 10th directory that is /home. होम डायरेक्टरी, दैट होम डायरेक्टरी फॉर ऑल द यूजर्स टू स्टोर द पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब जब भी एक यूजर क्रिएट होता है तो उस यूजर की एक होम डायरेक्टरी असाइन हो जाती है। उस होम डायरेक्टरी का पाथ रहता है /home/यूजर का नाम। सपोज अगर हमने जॉन यूजर क्रिएट किया तो जॉन यूजर की होम डायरेक्टरी का पाथ होगा /home/जॉन। और होम डायरेक्टरी ऐसा पाथ रहता है जिसपे यूजर के राइट्स रहते हैं वर्क करने के। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो रूट डायरेक्टरी से काम कर सकता है। अगर वो एक नॉर्मल यूजर है तो उस यूजर का जो नाम रहेगा, उस नाम, ये नाम, तो /home/यूजर का नाम, सिर्फ यही पाथ के ऊपर वो वर्क कर सकता है। उसका जो पाथ है वो इससे रिलेटेड रहेगा, इससे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अगर निकिता यूजर से लॉगिन किया तो /home/निकिता यूजर का होम डायरेक्टरी का पाथ रहेगा। अदरवाइज अगर हमने रूट से लॉगिन किया तो /root पाथ रहेगा और वो कहीं पे भी वर्क कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो होम डायरेक्टरी is the directory in which a user can work under the home directory and store the files. /bootloader files, it contains the bootloader related files like kernel की files है, VM Linux की file है, वर्क फाइल है। initialization of the Linux operating system, virtual machine start करने के लिए जो files लगती हैं। मतलब booting process क्या होती है? booting process is loading an operating system into the memory. Linux is one of the operating system. So to load the Linux operating system into the memory, /boot directory is responsible to store the
बूट लोडर फाइल्स, जो बूट लोडर फाइल्स हैं वो स्लैश बूट डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो कुछ फाइल्स हैं वही अवेलेबल है। तो हमको हर डायरेक्टरी किस काम आती है, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, ये हमें पता होना चाहिए। Next is slash lib directory, that is system libraries. It contains the library files that supports the binaries located under slash bin and slash sbin. अभी हमने बात की थी lib मतलब लाइब्रेरीज, तो सिस्टम लाइब्रेरीज की जो इन्फॉर्मेशन है बिन और एसबिन की इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हमने इसको ld स्टार किया, स्टार इज वाइल्ड कार्ड डॉस कमांड है, इसको अगर हमने lib स्टार डॉट एसओ स्टार, अगर हमने ये कमांड सर्च की तो हमको सारी फाइल्स जो एलडी से शुरू होती है, लिब स्टार किया तो जो सारी लिब से शुरू होती है, एसओ डॉट बीच में आना चाहिए, उसके बाद स्टार, स्टार रिप्लेसेस नन और मोर देन वन कैरेक्टर। दिस इज द कमांड व्हिच वी यूज टू सर्च अ पर्टिकुलर फाइल। तो अगर हमको देखना है कि सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो कुछ फाइल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है वो एलडी नाम से शुरू होती है, लिब नाम से शुरू होती है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम लाइब्रेरीज। थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टरी इज ओपीटी। थर्ड डायरेक्टरी कौन सी है? ओपीटी, दैट इज ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन। अगर हमने कुछ एड ऑन एप्लीकेशंस डाले हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐड किए हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो ऑप्शनल है, तो वो किसके अंदर चले जाते हैं? ओपीटी। OPT directory. OPT is for the optional. It contains add-on applications from the individual vendors. Individual vendors से add-on applications present करते हैं. So these add-on applications should be installed under either OPT directory or OPT slash subdirectory. इसके अंदर store होना चाहिए. Okay, so OPT is one of the directory which is optional for add-on applications, where the applications which are installed, extra applications, apps हम जो install करते हैं, ऑप्शनल एप्स जो हमको चाहिए, कुछ हमको जिप यूटिलिटी चाहिए, कुछ हमको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलिटी चाहिए, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करने के लिए यूटिलिटी चाहिए, तो ये सब हम सॉफ्टवेयर जो है एज एन ऐप कैन इंस्टॉल अंडर द ओपीटी डायरेक्टरी. Next comes under this directory structure is MNT, mount directory. This mount directory is mount directory where the sys admins can mount file systems. अब क्या होता है, अगर हम पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं या फ्लॉपी डिस्क यूज कर रहे हैं या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हर चीज का अपना खुद का अलग फाइल सिस्टम रहता है. फाइल सिस्टम मींस इन विच वे द फाइल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस, चाहे वो हार्ड डिस्क डिवाइस हो, चाहे वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो, तो उनका एक फाइल सिस्टम रहता है. लाइनक्स का फाइल सिस्टम सेपरेट रहता है और डॉस का फाइल सिस्टम सेपरेट रहता है, विंडोज का अलग रहता है. विंडोज का NTFS रहता है, फैट रहता है डॉस का. ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ext2 एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम रहता है. तो अलग अलग फाइल सिस्टम होने के कारण हम उनके कंटेंट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि सी ड्राइव के अंदर सिर्फ हार्ड डिस्क के कंटेंट्स दिखाई देंगे, CDE, और जो लास्ट अल्फाबेट रहता है दैट लास्ट अल्फाबेट इज यूज्ड फॉर द CD ड्राइव या USB के लिए, पेन ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो MNT is one of the directory where we can mount the directory structure and see it. Okay. Next is media, that is removable media devices. Temporary mount directories for removable devices. For example, slash media slash CD-ROM, मीडिया फ्लॉपी, मीडिया CD-ROM. जो हमने भी एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया की बात की थी, तो हम अगर CD-ROM जो है उसके वो मीडिया फाइल्स है तो उसको हम स्लैश मीडिया स्लैश CD-ROM में देख सकते हैं. फ्लॉपी ड्राइव है या CD रिकॉर्डर है तो मीडिया के अंदर हम उसको देख सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज SRV, that is the service data. SRV stands for the services, contains the server specific services related to the data, and this SRV CVS contains the CVS related data. Okay, so we have seen these 16 different directories under the root directory. Let's organize these again. In the next class, I'm going to ask you all these. So just remember these directories. Okay, let's begin with bin, binaries, user binaries, system binaries, configuration files, device files. All the processes, running programs are called as processes. Where is variable file, which whose length vary, मतलब log files वगैरह जिनकी length जो है वो बदलती है. Temporary files जो इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए रहती है, सिस्टम शटडाउन हुआ, इंफॉर्मेशन रिमूव हो गई, फाइल्स रिमूव हो जाती है, जैसे डाउनलोड्स है, टेम्परेरी डाउनलोड्स है,
cookies हैं, USR for the user programs, /home for the home directory for any user is /home/username. Boot is responsible for loading the bootloader, lib libraries, OPT optional, add-on applications which are installed, that is extra, MNT, home directory, media, mobile devices, SRV, service data. So we have total 14 different directories which are available in the standard Linux operating system and are responsible for functioning of the Linux operating system. तो Linux operating system में registry नाम का कोई concept नहीं रहता, हार्ड डिस्क का पार्टीशन जो है वो रूट से ही दिखाई देता है, अलग से CD ड्राइव नहीं देते, तो सारे कंटेंट्स, सिस्टम रिलेटेड फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, रजिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं रहता, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टरी के अंदर स्टोर रहती है. सो इंडिविजुअल डायरेक्टरी प्लेज अ वाइटल रोल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. हम उसको रिमूव करेंगे तो हमारे कुछ फंक्शनैलिटीज जो है वो कम हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ द डायरेक्टरी सिस्टम वर्क्स. नाउ आई एंड अप माय क्लास.